Okay. Good evening, my dear Rotarians, friends, and distinguished guests. Special greetings to Shri Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh on behalf of all the host clubs of today's meeting. I'm very happy to inform you that this program is jointly organized by Rotary Club of Ahmedabad Metro, Rotary Club of West, Rotary Club of Sarvam, and Rotary Club of Asmita. I hereby heartily welcome everyone on behalf of Rotary Club of Ahmedabad Metro. It is my pleasure to be an MOC for today's speaker meeting. I'm an Isha Brugesh Vyas from RCA Metro. Today, we have Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh to talk about a very interesting topic, Garbha Sanskar. We all have heard about Abhimanyu, who learned Chakravyu techniques while he was in his mother's womb only. So, Garbha Sanskar is a process of educating the mind of unborn baby. Today, in order to avoid any interruption, I would request all to keep their mic on mute mode. We appreciate you taking time off your busy schedules to join us. Thank you for your kind cooperation and attention. May I now request our President Rotarian Vatsal Shah to call the meeting to order. I call meeting to order. Thank you, Rotarian Vatsal Shah. I would now request Dr. Pooja Shah to start the meeting with a prayer. Hello everyone. Om Bhurbhuvasvah Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. तुमने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुमसे ही पाते ज्ञान हम, मांगते तेरी दया. तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जगह, ईश्वर हमारी बुद्धि को तुम श्रेष्ठ मार्ग पर चला. ओम शांति 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 ही. Thank you. Thank you, Dr. Pooja. Now, may I request Rotarian Ruthviben Shah to recite the four-way test, please? Hello, am I audible? Yes. Good evening to all. One of the things we think, say or do should have this four. Is it the truth? Is it fair to all the concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all the concerned? So this is the four-way test of our Rotary Club. Thank you for telling me to recite the four-way test. Thank you. Thank you, Ruthviben. Now I request L. Pooja Dipen Thakkar to introduce our guests. Hello everyone. Today's guest is Dr. Abhay Shah. He is BAMS from Mumbai. He is an Ayurvedic consultant and has an experience of 13 years in his field. He practices at Jivanand Clinic in Borivali West. His specialty is in gastrointestinal disease and pediatric treatment, childcare, panchakarma and garbha sanskar, etc. Our second speaker is Dr. Jollyben Parikh. Jollyben Parikh is an also Ayurvedic consultant, a garbha sanskar trainer and prenatal educator. She is the chief counselor at Ahmedabad and Surat Sanskar Shakti Garbha Sanskar Kendra. She teaches and shares the techniques of Garbha Sanskar at pre-planning phase, pregnancy phase, post-delivery phase, and kids development phase with Ayurvedic and spiritual way. Her clinic is at Chandranagar, Paladi, and she works with some hospital, trust, and institutes also. Welcome, Dr. Abhay Bhai and Dr. Jollyben Parikh. Thank you, Pooja, for introducing our guests. I would like to request Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh to take over and enlighten us about today's topic. Isha, sorry to interrupt you. Yes. You forgot my welcome speech. Oh. Yeah, okay, I'm extremely sorry. No, that's fine. Requesting you to please take over. You and have taken the initiative this time, and I really appreciate it, despite whatever errors are there.
I, President Vatsal Shah of Rotary Club Ahmedabad Metro, welcome our guest speaker, Dr. Abhay Bhai and Jolly Ben to this speaker meeting. I also welcome PDG Ravin Bhai Daftari. I welcome the presidents of the participating clubs joining us today, Shabnam ji from Ahmedabad West, Gitika ji from Ahmedabad Sarvam, and Rakhi ji from Asmita. I welcome their club secretaries and members who are present here in the meeting. Yes, friends, it's COVID times once again, and while physical meetings are still uncertain, it is our endeavor to bring interesting topics and topics which are off the beaten track. So we'll right at the moment continue with such speaker meetings. Another important announcement is that our GOV, which was planned for 10th February, right now it's postponed because our governor is down with COVID, and we wish him speedy recovery. Okay, friends, let's gear up for this interesting topic today. Thank you so much. Yeah, I would request Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh to take over, please. Thank you so much, Isha ma'am. Vatsal bhai, should I go with Hindi or Gujarati? Which will be Abhay bhai, there will be lots of people with Hindi, so Hindi, Okay. English is fine, I guess. Sure, Right. definitely, definitely. I'm sharing my screen. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आनंद हुआ इन सभी को देखकर, यंग जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन उनको देखकर, यंग जनरेशन यानी जो 60 प्लस है वो, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उससे यंगर है वो, और बड़ा अच्छा लगा दीपेन भाई और उनकी जो बेटर हाफ है, उन्होंने एक गर्भ संस्कारी कपल से एक गर्भ संस्कार का इंट्रोडक्शन दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे कहते हैं कि कहा है कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक गर्भवती माता को कैसे रहना चाहिए, तो आयुर्वेद में सिर्फ एक ही शब्द उसका यूज किया है, वो है सौमन्यस्य जननम, यानी कि सदा प्रसन्न रहो। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सब लोग स्माइलिंग फेस है, सब लोग प्रसन्न है। बस यही चीज वो माता को नहीं, सभी को ये करनी चाहिए कि पूर्ण जीवन वो सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गर्भ संस्कार से। तो सबसे पहले हमारे जो आचार्य भगवंत है, परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राजन सूर्यवंशी जी महाराज साहब, कि जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से पिछले 12 सालों से ये संस्कार शक्ति नाम का ATG रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट की एक्टिविटी ये उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से चल रहा है। साहिब जी का नेक्स्ट चातुर्मास कांकरिया अहमदाबादी है, शायद हम लोग अभी नर्सरी में है, लेकिन इस सब्जेक्ट पर उनकी PhD लेवल के नॉलेज है। तो उनको वंदन करके, परमात्मा को वंदन करके आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं रोटरी क्लब अहमदाबाद मेट्रो को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अनुमोदना करना चाहूंगा कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, हमें ऐसा लाभ दिया कि हम हमारे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हम बाकी सबों से शेयर कर सके, और एक ये जो कंसेप्ट है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ये इसका स्प्रेड हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है गर्भ संस्कार का मीनिंग क्या होता है। तो गर्भ और संस्कार ये 2 शब्दों से बना है, और गर्भ यानी लिविंग बीइंग, जो फिटस जिसे हम कहते हैं, और संस्कार यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लाना है, उसकी क्या नेसेसिटी है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जैसे मीटिंग ज्वाइन होने से पहले डिस्कशन चल रहा था, भाई हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, बराबर है। हाँ, हम लोग है तो ऐसे ही कभी 9 महीने चले गए। जो भी वडील बैठे हैं उनको आप पूछोगे तो सोनोग्राफी कितनी की, एक हार्डली की होगी, एक हार्डली, कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट कुछ नहीं। नॉर्मल डिलीवरी तो हाँ, लगभग हम सब नॉर्मल डिलीवरी से आए, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी परसेंटेज नॉर्मल डिलीवरी की वही रहेगी। क्यों जरूरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, अगर कोई एक माता कुछ करती है 9 महीने, कुछ कोई भी प्रवृत्ति करती है, तो शायद वो जो बालक है वो स्पेशल इनपुट से आएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करती तो 9 महीने भी होंगे,
बालक बड़ा भी होगा और डिलीवरी भी होगी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमें देखना है, बराबर। तो ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू इस सब्जेक्ट के बारे में मिले। कैसे होता है, आयुर्वेद में होता है कि खाने से पहले है ना भूख को बढ़ानी पड़ती है। तो आज मैं ये करूंगा, सिर्फ मैं भूख को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या है। मतलब जो अंकल कह रहे थे कि भाई हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, हाँ, सब लोग नेचुरली आ रहे थे और सभी, और आप देखोगे कि महात्मा गांधी की माता हो या स्वामी विवेकानंद की हो, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो कि या सारा भाई की हो, लेकिन क्या उन्होंने क्या कोई गर्भ संस्कार नहीं किया, फिर भी महान पुरुष आए। तो फिर ये करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द गर्भ संस्कार। तो ये मेरा पहला प्रश्न आप सबसे, और आपके मन में ये प्रश्न, मतलब आपका ही प्रश्न मैं ये कह रहा हूँ कि गर्भ संस्कार क्या मैंडेटरी है, क्या जरूरी है। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमारे समाज में से या पूरे भारत में से एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके घर में से, उस माता के गर्भ में से बिना गर्भ संस्कार के बालक का जन्म हो। वो गर्भ संस्कार ही होना चाहिए ईच एंड एवरी किड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक पहला टारगेट हमारा भारत देश रहेगा। तो क्यों ये जरूरी है, तो सबसे पहले आता है जनरेशन गैप। ये होता था कि पहले जनरेशन 50 इयर्स 60 इयर्स में चेंज होता था। आज आप देखोगे ना 10-10 साल में चेंज हो रहा है। 10-10 साल, आप 10 साल पहले की स्थिति देखो और अभी की स्थिति देखो, आपको लगे इतना सारा चेंज आ गया। वर्ल्ड इतना फास्ट चेंज हो रहा है, क्या हम इसको ठीक से कॉप अप कर सकते हैं। आज ये क्या होता है, बालक ये कंप्लेंट करता है कि माँ बाप मेरी सुनते नहीं है, और माँ बाप ये कंप्लेंट करते हैं बालक हमें समझता नहीं है। ये समझता नहीं और ये सुनता नहीं, ये दोनों की कंप्लेंट ये रहती है। लेकिन हमारे जनरेशन में वो नहीं थी। जो माता पिता ने कहा वो हमने किया, लेकिन आज बालक की बात हमको माननी पड़ती है। आज बालक हमारा बाप बन गया है। तो ऐसा क्यों हो गया। हाँ, आज भी हम देखोगे जो जितने भी बच्चे, उनके बचपन और हमारा बचपन में इतना आसमान जमीन का फर्क, सिर्फ 20-25 साल में ये चेंज हो गया। तो ये जो जनरेशन गैप है ना, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। तो वो गैप कम करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए ये गर्भ संस्कार करना पड़ेगा। दूसरा, लाइफस्टाइल। आप देखोगे पहले के लाइफ इतनी सादी सिंपल थी, ऑफिस जाना आना, 2 टाइम खाना पीना, बस हो गया। लेकिन अभी रात रात भर जागना। हमारे यहाँ पे आते हैं पेशेंट, तो वाइफ होती है वो हॉल में बैठी रहती है, हस्बैंड रहता है वो बेडरूम में बैठा रहता है और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और डायरेक्ट सीधा रात को दोनों जन मिलते हैं। एक ही घर में दोनों रूम से वो लोग रात को मिलते हैं। ये हो गए लाइफस्टाइल। 2 साल में उन्होंने जो 20 साल का जो वेट लॉस किया था वो भी चेंज हो गया। तो ये जो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हुई, उसके कारण क्या हुआ कि इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ गए। आप देखो पहले आईवीएफ सेंटर्स कितने थे, और आज मेरे ख्याल से मैक्सिमम अहमदाबाद में इतने सारे, अब हर गली में देखो आईवीएफ सेंटर, इनफर्टिलिटी सेंटर्स। ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। तो ये जो लाइफस्टाइल जो इम्प्रोवाइजेशन है वो गर्भ संस्कार में सिखाया जाता है कि क्या करे जिससे कि ये सभी हमें मेडिसिन से दूर रखे। तीसरा आता है मैरिज सिनारियो। पहले 20-25 साल, दादा को पूछोगे तो कितने साल में शादी हुई, एकदम अर्ली एज में, मतलब 25 हो गया तो बोलो कितनी उम्र हो गई। और आज 28 में तो स्टडी पूरी होती है, और फिर सोचते हैं कि मैं करूं, 30 साल के बाद तो वो शादी करते हैं। तो मॉडर्न साइंस भी कहता है, आयुर्वेद भी विज्ञान ये कहता है, जितनी अर्ली एज में मैरिज होता है फर्टिलिटी रेट उतना ज्यादा रहता है। लेकिन पढ़ाई ही 28 साल में पूरी होती है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो गई है। तो उसे होता क्या है, इसकी इफेक्ट इनफर्टिलिटी पे पड़ती है, और इंटर्न आने वाले हमारे जो बेबी है उस पर पड़ती है। क्योंकि हमें यहाँ पे फिजिकली, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों चीज यहाँ पे देखनी है। तीसरा आता है अनहेल्दी फूड। आप देखोगे हमारे जितने भी बड़े लोग हैं हार्डली बीमार पड़ते हैं, और हम लोग मतलब फिक्स ही होता है कि भाई 15-20 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पहले की जो खाने की स्टाइल और आज की खाने की स्टाइल, पहले के जो जंक फूड आदि नहीं थे, लारी खुमचे कुछ नहीं थे। अब अहमदाबाद की स्ट्रीट पे लोग तो स्पेशली अहमदाबाद खाना खाने ही आते हैं, और सब क्योंकि मेरा ससुराल, मेरा मौसाल वो सब उधर ही अहमदाबाद में, तो ये चीज पर है। तो कितनी सिस्टम चेंज हो गई। आज चाइनीज फूड, जंक फूड खाते हैं, और वो इफेक्ट इवन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो।
क्योंकि ये देखो, गर्भ संस्कार जो है ना, प्रेगनेंसी से स्टार्ट नहीं होता, ये प्री प्लानिंग से स्टार्ट होता है। बताओ, आज ये सेशन रखना है तो इसकी प्लानिंग वत्सल भाई ने 15-20 दिन पहले से की, तब जाके इतना अच्छा सा ये सेमिनार हो सका। तो मुझे बताओ, एक छोटे से सेमिनार के लिए, 1 घंटे सेमिनार के लिए यदि 15-20 दिन पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो मुझे बताओ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कितने साल पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती है। और उसमें वन ऑफ द फैक्टर अनहेल्दी फूड है। मदर्स क्या होता है, उनकी हैबिट्स छूटी नहीं रहती है, क्योंकि फिक्स होता है सैटरडे संडे मतलब बाहर खाना, और घर पे खाना मतलब एक गुनाह हो जाता है कि घर पे सैटरडे संडे नहीं खा सकते। जो खाते हैं उसकी इफेक्ट बॉडी पर पड़ती है, इंटर्न बेबी पर पड़ती है, बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। और न्यूक्लियर फैमिली, पहले क्या होता, 4-4 भाई होते थे, उनके 2-2 बच्चे होते थे, तो बड़ा परिवार होता था। और आज एक के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, ये सिस्टम हो गई है। तो हाँ, फिर माँ बाप अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, या तो कई कपल से जो आईटी जॉब में तो बैंगलोर चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, बस बात खत्म। और उसकी इफेक्ट भी इस पे पड़ती है, मतलब अभी 1 है तो बहुत हो गया, 2 तो मुझे चाहिए ही नहीं, बराबर। पहले ऐसे नहीं था सिस्टम, तो ये सब चेंज क्यों हुआ, यही सब समझाने के लिए गर्भ संस्कार है। और जो पुरानी अपनी जो परंपरा है ना, उसको वापस प्रस्थापित करने के लिए ये गर्भ संस्कार है। और मैं बोलूं कि अभी तो क्या होता है, हमें बस एक ही बच्चा चाहिए, हम एक को ही सब कुछ देंगे, और हमारा एक ही वो 3 के बराबर है। तो 3 बच्चा करने से एक ही ऐसा करो 3 पे भारी पड़े, तो फिर एक गर्भ संस्कार तो खास करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही में तीनों का पावर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, इट इज अ मैंडेटरी इन करंट सिनेरियो। चलिए, और ये मैं कहता हूं कि कोई भी चीज को अगर बहुत इजीली समझना हो ना, तो हमें है ना वो एग्जाम्पल से समझना चाहिए। और हम पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम्पल, तो उसका आंसर ये है कि जो इडियट और इंटेलिजेंट दोनों को समझ में, दैट इज कॉल्ड एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल शिवाजी महाराज का। अभी हुआ ये था कि अभिमन्यु के एग्जाम्पल सबको पता है, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए, बाकी एग्जाम्पल्स काफी सारे। एक एग्जाम्पल मैंने पुराना वाला लिया और एक एग्जाम्पल मैंने नया वाला लिया है। तो अभी शिवाजी महाराज का अगर ले, तो उनकी मदर प्रेगनेंसी में कहाँ पे थी, तो कि जेल में थी। और जेल में ही उसने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा बालक चाहिए कि जो इन सभी शत्रुओं के सामने लड़ सके, इन शत्रुओं के सामने लड़ सके और अपने हिंदुत्व की रक्षा कर सके, और बहुत बड़ा अच्छा न्याय प्रिय राजा बन सके। मुझे बोलो, ऐसे सोचने से कभी कुछ होगा क्या? मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, या मेरा बच्चा एक अच्छा आदमी बने, एक अच्छा गुड ह्यूमन बने, बराबर है? तो मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है सिर्फ सोचने से? आज हम वो देखते हैं बीइंग ह्यूमन, लेकिन मतलब यानी कि आप अभी ह्यूमन बन रहे हो, हमें तो ये लिखना आई एम अ ह्यूमन। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, क्या सिर्फ विचार करने से होगा? नहीं, विचार करना ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद का स्टेप क्या है? उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो छूटकर वो घर पे आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने उनके गुरुजी से मिले, दादा कौंडेव। और दादा कौंडेव ने कहा कि बेटा, अंदर जो भी बालक है, लेकिन उसको इतना महान राजा बनाएंगे कि सारी प्रजा का रक्षण वो कर सकेगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, राजा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो राजा है तो उसमें युद्ध की कुशलता होनी चाहिए, युद्ध नीति में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो हाँ, लेकिन इसको बनाना था न्यायप्रिय, धर्मप्रिय राजा बनाना था। तो उन्होंने देखा कि सबसे बेस्ट है कि रामायण पढ़ना चाहिए, प्रेगनेंसी में रामायण पढ़ना चाहिए। मुझे बताओ, युद्ध का वर्णन तो महाभारत में भी है, तो महाभारत क्यों नहीं पढ़ा? कभी किसी क्वेश्चन हुआ? इसीलिए क्योंकि रामायण और महाभारत में फर्क क्या है, क्या करना चाहिए वो हमें रामायण से सीखने मिलता है, और क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत से सीखना है। हाँ, भाई भाई के साथ झगड़ा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रामायण लिया, क्योंकि वो पूरा जो चरित्र है वो पूरा पॉजिटिविटी से युक्त है।
और उसमें भी रामायण में तो काफी कांड है, अलग अलग चैप्टर्स है, बराबर है, जैसे बाल्य कांड है, वैसे अलग अलग उसके कांड है, लेकिन उसमें सबसे जो महत्व का था उनके लिए वो था अरण्य कांड। वही चैप्टर पूरे रामायण में से सिर्फ अरण्य कांड को चूज किया और अरण्य कांड ही पढ़ा पूरे के पूरे 9 महीने, 9 महीना पढ़ा, और दूसरे 8 साल, यानी ये 1 साल हुआ और उसके ऊपर 9 साल, टोटल 10 ईयर का मास्टर प्लान बनाया उनके गुरु ने। सिर्फ गर्भ में ज्ञान देने से कुछ होगा नहीं, उसके बाहर आने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो संस्कार डाले हैं, जो थॉट्स डाले हैं, उनको कल्टीवेट करने के लिए बाहर से आपको आफ्टर बर्थ भी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गर्भ में संस्कार दिया इसलिए बात खत्म, नहीं, वो दैट इज द वन ऑफ द स्टेप, लेकिन वो कंप्लीट तभी होता है जब बर्थ के बाद वही एटमॉस्फेयर दिया जाता है। और उन्होंने युद्ध नीति सिखाई, और एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमें शिवाजी जैसे एक महान राजवी मिले, बराबर है। जैसे कि देखो मैं अभी एक शेयर कर रहा हूं वीडियो, ये शिवाजी महाराज थे, याद रखना इसमें पिताजी वैसे तो नहीं थे, लेकिन अभी के सिनेरियो में तो होने चाहिए, लेकिन ये शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ उनकी माता थी। अगर वो जॉब करती होती तो शायद ये नहीं होता, अगर वो दूसरे काम में होती तो भी नहीं। संपूर्ण 9 महीने और उसके पश्चात उस माता को वो बालक के साथ रहना पड़ता है, और तब जाके शिवाजी होते हैं। तो ये हमने एक देखा, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सोनू निगम का। सबको सोनू निगम पता ही है, बराबर है, लेकिन उनकी ये बात पता है कि नहीं वो हम देखते हैं। हाँ, तो ये मैं वीडियो शेयर आपसे कर रहा हूँ। आई होप सबको दिख रहा है। आप लाइव एग्जाम्पल, उनकी माता ने ये सोचा कि मेरे आने वाले बालक का स्वर एग्जैक्ट लता मंगेशकर की जैसा हो, और वैसे हुआ। दिस इज द पावर ऑफ संकल्प, या आप उसे कह सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ वत्सल भाई, वीडियो बराबर देखा हो ना आपने? Yes, perfect, perfect. यस यस। तो ये तो अभी दोनों, और आप देखो कि उनके बारे में ही सोचा तो दोनों का रिलेशनशिप भी कितना अच्छा हो गया। और ये सोनू निगम ही एक व्यक्ति ऐसे है जो लता मंगेशकर की भी मिमिक्री कर सकते हैं, उनकी वॉइस में आवाज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वीडियो पे अगर शायद देखा हो तो ये शक्य है, दिस इज पॉसिबल। इसलिए हम लोग का स्लोगन ये है, डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड। अगर किसी को कुछ डिजायर नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये शक्ति उस माता को दी है कि वो जैसी इच्छा करे, जैसा संकल्प करे, इच्छा भी नहीं संकल्प करे, वैसा बालक को ला सकती है। तो फिर इस शक्ति का सदुपयोग हम क्यों ना कर सके। जैसे मेरे ख्याल से हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनकी माता ने भी गर्भ संस्कार किया था, और उनकी माता ने उनकी प्रेगनेंसी में भगवत गीता पढ़ी थी, और ये न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है वहां पे हीरा बाने। तो आप देखो लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो ये सब कुछ हो सकता है, और ये चीज आप सभी को स्प्रेड करना है। देखो ये एक अच्छी चीज है, और इससे फायदा क्या होगा, अपना ही देश अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश में सुप्रजा बढ़ने लगेगी। बच्चा पैदा करके ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, लेकिन शक्ति को बढ़ाना है, बराबर है। शेर की बस्ती ज्यादा होती है या सुअर की बस्ती ज्यादा होती है? तो शेर की कम होती है, लेकिन वो सत्वशाली होते हैं। पांडव 5 थे तो कौरव 100 थे, तो लेकिन सत्व किस में था? तो बस ऐसे ही महापुरुष को जन्म देने के लिए ये गर्भ संस्कार करना चाहिए। लेकिन ये कैसे करते हैं और हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको डॉक्टर जॉली बेन बताएंगे। यस, ओवर टू यू वत्सल भाई। यस, Pranam, thank you, Abhay bhai. I'm just sharing the screen. Screen is visible, right? Okay. Yes, yes. So, Abhay bhai, thank you so much.
for giving the good definition of गर्भ संस्कार. अच्छे से श्लोक से हम लोग शुरुआत करते हैं. ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. तो जब भी हमें कोई अच्छा सा कल्याणकारी कार्य करना है तो हम लोग कुछ शुभ कार्य से पहले दिया जलाते हैं, जिससे शत्रु की बुद्धि यानी कि नेगेटिविटी का नाश होता है. आज रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद मेट्रो उन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि एक अच्छी सी अवेयरनेस और एक नए अच्छे से शुभ मैसेज पूरी सोसाइटी को मिल रहा है. चाहे कोई व्यक्ति 70 साल का है वो सुन रहा है या 25 साल का सुन रहा है, मगर कहीं ना कहीं अपने आसपास ये इस मैसेज को स्प्रेड कर सकता है. नाउ यू ऑल नो गर्भ संस्कार. अभी मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल से हमको बताया, मगर सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हेन टू डू गर्भ संस्कार. अच्छा, मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही है राइट? नहीं मैम, स्लाइड अभी हाँ एक ही फर्स्ट स्लाइड पे ही है. ओके, इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले लीजिए तो हो जाएगा. नाउ इज इट वेयर व्हेन टू डू दिख रहा है? नहीं मैम, फर्स्ट फोटो ही है अभी और लेफ्ट साइड में स्लाइड्स दिख रही है. प्रेजेंटेशन में नहीं जा रहा है बस. हाँ खोलिए, ओपन करिए. Is it visible, Isha ma'am? या Yes, now it's fine ma'am. Okay. So this is called when to do. ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. चलो हमने समझ लिया गर्भ संस्कार क्या है, मगर कब करेंगे? तो भाई ने बताया कि प्री कंसेप्ट से आपको ये शुरू करना है. सिंपल एक चीज दिमाग में रखनी है कि कोई भी वृक्ष को अच्छा बड़ा करना है तो उसके रूट में पहले जाना पड़ेगा. उसके यदि सीड्स अच्छे होंगे तो ही वृक्ष अच्छा होगा. अहमदाबाद के लोग आम खाने के शौकीन होते हैं. यदि घर के बाहर वो लंगड़ो कैरी का सीड्स डालेंगे तो हाफूस कैरी नहीं मिल सकती. तो जैसे सीड्स आप डालोगे वैसा ही वृक्ष आप पाओगे. तो ओवम या स्पर्म यानी कि फीमेल का बीज और पुरुष का बीज, यदि ये दोनों फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली साउंड है यानी कि जेनेटिकली गुड है, तो ही बेबी बेस्ट आ सकता है. सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन पीरियड. सेकेंड पार्ट आता है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, यानी कि आप अपने बेबी को मोल्ड कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी तो एक माटी के पिंड के समान होता है गर्भावस्था में. तो आप जैसे डिजाइन करोगे वैसा ही बेबी मोल्ड लेगा. राइट? इट्स अ वर्क ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और तीसरे नंबर पर एक बार बेबी बाहर आ जाता है, so many parenting rules are there in गर्भ संस्कार जो आपको फॉलो करने हैं. और बेबी ऑलरेडी गर्भ संस्कार से आया हुआ है, so baby would understand everything easily. So ये 3 पार्ट में यदि आप उसको फॉलो अप कर रहे हो तो you achieve the best result. Right? हमारे पास तीनों पार्ट में अलग अलग सेशंस रहते हैं. कहीं लोग प्री कंसेप्शन शुरू करते हैं, कहीं लोग प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं, और हमारे पास कहीं मदर्स आते हैं जिनका बच्चा ऑलरेडी 2-3 साल का हो गया है एंड दे हर्ड अबाउट गर्भ संस्कार एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग द रूल्स. तो ये तीनों पार्ट में आप कर सकते हो, मगर जो रूट से शुरू करता है उससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है. सेकेंड है हाउ टू गिव गर्भ संस्कार, यानी कि कपल को कैसे ये गर्भ संस्कार फॉलो करना है. तो सिंपल है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड आयुर्वेदिक मेथड्स.
आयुर्वेद में तो गर्भ संस्कार पर पूरा शास्त्र है, उसके बहुत अच्छे अच्छे चीजें इकट्ठे करके आज पूरा एक गर्भ संस्कार मॉडर्न टाइम में इंट्रोड्यूस किया है, और उसके साथ साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप उसका यदि गाइडेंस लेते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो। अभी हमने आगे जैसे सर ने नहीं बताया कि मीटिंग शुरू हुई, उससे पहले हम लोग बातें कर रहे थे, तो किसी ने बताया कि भाई गूगल पर तो सब कुछ मिल जाता है, then why we should do this all the things। हम गूगल को माँ ही बोलते हैं, अपनी मम्मी को नहीं पूछते, मगर गूगल को पूछेंगे ये कैसे बनेगा, ये खाने से क्या होगा, ये खाने से मेरे बच्चे को ये दे सकती हूँ। तो गूगल माँ है, मगर ये जो गूगल माँ है वो आपको एक साथ 25 ऑप्शन बताएगी, एंड यू विल नॉट एबल टू डिसाइड कि इसमें से मेरे लिए क्या सही है, राइट। तो आपको गाइडेंस शायद गूगल दे देगा, मगर मुझे अपनी प्रकृति के हिसाब से, मुझे अपने जीन्स के हिसाब से, मुझे अपने जो डिजायर्स है, इच्छा है, उसके हिसाब से मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है पूरी प्रेगनेंसी में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि गूगल इज फॉर जस्ट जनरल, राइट, सबके लिए है। आप भी वही देखते हैं, आपके दादा भी वही देखते हैं। तो दिस इज वेरी, यू शुड गो फॉर कस्टमाइज, कि मुझे अपने लिए क्या करना है। हम कस्टमाइज ड्रेस ले लेते हैं, कस्टमाइज ज्वेलरी ले लेते हैं, मगर बेबी के लिए कुछ कस्टमाइज नहीं करते। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, जानकर पूरे 9 महीने। मैं एवरी प्रेग्नेंट मदर को एक चीज बोलती हूँ, यू आर अ सीसीटीवी कैमरा। आप जो देखते हो वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है, बेबी के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। सो बेबी यही सोचेगा और समझेगा। आप जो सुनते हो वही बेबी समझेगा, और बेबी को पता चलेगा कि मुझे इसको ही इंप्लीमेंट करना है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड what I have to speak, what I have to listen, where I have to stay, right? So आगे नहीं सोचा हमने कि it's a lifestyle। गर्भ संस्कार ऐसी चीज नहीं है कि आपने खरीद ली, आपने हाथ में पकड़ ली और बच्चे में सब आ गया। It's a lifestyle changing। So throughout the 9 months, if you do that, you can get multiple results। अच्छा, now can you able to see the next slide? Yes, we can. Okay, so the next is what to do। अभी ये तो समझ लिया, मगर करना क्या है मैम? हमको बहुत अच्छा बच्चा चाहिए, आइडियल। और जब भी कोई भी प्रेग्नेंट मदर आते हैं, एंड व्हेनेवर वी आस्क आपको क्या क्या क्वालिटीज बेबी में चाहिए, तो ये जो नीचे मैंने सिंपल थोड़ी सी चीजें लिखी है, 1/4 पार्ट आई हैव रिटन इन 3 लाइन्स। क्रिएटिविटी चाहिए, लीडरशिप चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, सब में इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए, ब्रेवरी, सो ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स, राइट। और आप जानते भी हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, मम्मी को ऐसा होता है वो ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आए, डांसिंग कंपटीशन में भी उसको पार्टिसिपेट करना है, एनुअल फंक्शन में भी वो फर्स्ट आना चाहिए, और वो स्टडी में तो नेचुरली A+ ही लाना चाहिए, और उसकी वोकेबलरी, स्पीच एक्सीलेंट होनी चाहिए, वो सब कुछ खाना भी खाना होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी चाहिए। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, सो आई हैव पास थ्रू दिस ऑल थिंग्स। अब मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि यदि गर्भ संस्कार नहीं किया होता तो आधे रास्ते पर भी हम नहीं आ सकते। हमारे एक्सपेक्टेशंस एज अ पेरेंट्स इतने रहते हैं कि यदि हमने बीच में जो कुछ भी नहीं डाला है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोस थिंग्स। सो ये सब चीजें गर्भ संस्कार से आ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई we suggest 6 type of activities जो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और थोड़ी बहुत प्री कंसेप्शन पीरियड में भी करनी है। अभी 6 जैसे ही दिखेगा ना, सबके मुंह के भाव भाव बदल जाते हैं, इतना सब कुछ करने का, ओहो।
ये तो बच्चा खुद नहीं कर लेगा बाहर आके। मगर जैसे मैंने बताया कि आपने जैसा इन्वेस्ट किया है ना, वैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा। हमको बैंक का भी अनुभव है, प्रीमियम भरते हैं उसका भी अनुभव है, और जो भाखरी बनाते हैं, જેટલું મોયણ નાખીએ એવી ભાખરી મળે, બરાબર ને? બધા ફિમેલ્સ ને ખબર છે. તો these are 6 type of activities generally we suggest. मगर उसके पहले I would like to tell you certain examples, right? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मदर का बताना चाहती हूँ. शी इज फ्रॉम मुंबई. हमारे यहाँ ही उन्होंने गर्भ संस्कार किया था. उनके 38 वीक में, ये जो सामने दिख रहा है वो सोनोग्राफी का रिपोर्ट है. उनके 38 वीक में जब उन्होंने अपनी सोनोग्राफी करवाई थी, तो नीचे जो रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, उसमें लिखा है AC showing 32 weeks maturity. मतलब कि उनका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस 32 वीक्स के आसपास दिख रहा था. नॉर्मली उनकी प्रेगनेंसी अभी 37 वीक्स के आसपास चल रही थी. जनरली आप गायनेक की लैंग्वेज में जाओ तो समझो कि उसके स्टमक रिलेटेड उसको कुछ डिफेक्ट है. IUGR यानी कि उसका जो ग्रोथ है वो भी अंडर ग्रोथ है. तो ये सब उनके रिपोर्ट में दिखाई दिया और उन्होंने लिख लिया कि ओरिजिनल उसकी जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए उससे ये लेस है. मगर ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंट थी. उन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस लिया, थोड़ी सी एडवाइस ली, और हमारे साहिब जी ने सजेस्ट किया कि भी ब्रह्म मुहूर्त में यदि वर्तमान शक्रस्तव का आप जाप करते हो तो उसकी जो डिवाइन एनर्जी है वो भी आपको मिलेगी. एंड यू बी स्टेबल. स्ट्रेस करना नहीं है, सब कुछ बेबी के साथ सही होगा. और नेचुरली 36-37 वीक चल रहा है, तो 3-4 वीक में तो वैसे ही डिलीवरी होने वाली है. और बेबी का जन्म हुआ 101% हेल्दी. मैंने बेबी का फोटो भी इसलिए बताया है क्योंकि इस बेबी में कुछ भी प्रॉब्लम, डिफेक्ट, एब्डोमेन रिलेटेड और एनी अदर, दैट वाज नॉट देयर. तो उसका विश्वास आप सोचो कि कितना बढ़ गया होगा कि मैंने जो पूरे 37 वीक्स तक गर्भ संस्कार फॉलो किया है तो मुझे कैसा बालक मिला. सो मैं ये नहीं बोल रही हूं कि कोई रिपोर्ट्स गलत हो सकते हैं, मगर आप चाहो तो बहुत कुछ चेंजेस प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार के कारण कर सकते हो. मैं अपना खुद का एग्जांपल एक देती हूँ कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा बालक थोड़ा सा प्री मैच्योर डिलीवर हो गया था. इट वाज इन द स्टार्टिंग ऑफ 34th वीक. जनरली 40 वीक की प्रेगनेंसी रहती है, तो 33 वीक्स कंप्लीट हुए और तुरंत ही मेरी लेबर पेन स्टार्ट हुआ और डिलीवरी हुई. बट माय बॉय वाज 2.5 kg बर्थ वेट और उसको 1 मिनट भी इंक्यूबेटर में नहीं रखा था. यानी कि जो पेटी में रखते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना सब. डॉक्टर ने उसके हार्ट, रेस्पिरेशन सब कुछ चेक किया. वैसे मेरे हस्बैंड भी खुद एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, तो सारी तैयारियां रखी थी कि भाई प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है तो वी शुड हैव अ नियोनेटोलॉजिस्ट. एवरीथिंग वाज देयर, बट एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि 33rd वीक के एंड में कोई भी बच्चा इतना हेल्दी फिजिकली, वेट और मेंटली, उसके सकिंग रिफ्लेक्स, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट. राइट? तो ये जो चीज है वो गर्भ संस्कार से आप प्राप्त कर सकते हो. आगे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. ये जो लड़की है, शी इज फ्रॉम केरला. शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, बट शी सिंग्स वेरी वेल. थोड़ी सी फनी वीडियो है, मजा आएगा सबको देखने का. मैं सिर्फ आपको एक इतनी चीज बताऊंगी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो, लास्ट में, लास्ट पार्ट जो है उसमें उसके लड़की के फादर जो बोलते हैं वो आपको ध्यान से सुनना है.
ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हो तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाँ हो तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। वाह बहुत अच्छे। बट मैं एक्चुअली एक बात पे हैरान हूं यार, इनको हिंदी नहीं आती, जिसमें ठीक है नहीं आती यार, लेकिन इतना अच्छा हिंदी में गाती कैसे? पिताजी कहाँ पे है? पापा वेयर? पिताजी? पापा शी सिंग्स वेरी वेल, थैंक यू सर। बट हिंदी सो गुड, टॉकिंग नो हिंदी, हाउ? मेरी इंग्लिश को क्या हो गया? When is her mother pregnant? That was her mother regularly listening to Hindi film songs, ghazals, Ladaji songs, Asha Bhosle songs, Rafi Saab songs. क्या बात है यार! And I think she learned from her mother's womb. एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। Thank you very much, sir. क्या बात! थैंक यू सो मच। She learned from her mother's womb, right? उसकी माता ने जो सुना था उसकी कितनी हाईली इम्पैक्ट होगी उसके सबकॉन्शियस माइंड पर, जिसके कारण उसके बालक में ये जो लैंग्वेज का प्रभाव आया। तो सर्टेन थिंग्स हम सोच नहीं सकते मगर प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ गर्भ संस्कार, आई वुड से। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि 6 टाइप ऑफ एक्टिविटीज you can do in pregnancy। तो आपको अपना एक पूरा शेड्यूल बनाना है और ये चीजें पूरी प्रेगनेंसी में करनी है। सो फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जो मैंने यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट पर आपको उसके सजेशंस दिए हैं। आई एम नॉट टेकिंग इन डिस्क्रिप्शन, राइट? तो आपको इंटेलिजेंट एक्टिविटीज करने से बेबी में वो इंटेलिजेंस प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर है क्रिएटिव एक्टिविटीज, राइट? आप कुछ भी जो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज थ्रू आउट द 9 months करते हो विद गुड कंसंट्रेशन दैट रीचेस टू योर बेबी। नंबर 3, गर्भ संस्कार एक्टिविटीज। दिस इज द बेस ऑफ द गर्भ संस्कार, कि भी जिसमें आपका गर्भ संवाद यानी कि बेबी टॉकिंग, आपका अपना जो डेली एटीट्यूड है, थॉट प्रोसेस है, वो कैसे आपको चेंज करना है और वो आपको फॉलो करना है विथ योर ओन संकल्प। मुझे कैसा बालक चाहिए ये सोचकर उसके हिसाब से। तो दिस इज कंसिडरिंग गर्भ संस्कार एक्टिविटीज। उसके बाद है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी चीजें आप अलग अलग प्रकार से एक टाइम टेबल करके फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। आप जो कोई भी इष्ट देव में मानते हो उसको आप सिर्फ फॉलो करो, उस पर विश्वास करो और ग्रेटिट्यूड करो, दैट इज इनफ। नेक्स्ट इज फूड रेजिम। आपका जो खाना पीना, दैट विल गिव योर बेबी हेल्थी लाइफस्टाइल एंड इम्यूनिटी। तो ये कैसे खाना है, मंथ वाइज क्या खाना है, कैसे खाना बनाना है और उसका अन्नपान कैसे करना है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन अवर गर्भ संस्कार एंड आयुर्वेद। लास्ट इज पीसफुल एक्टिविटीज, जिसके अंदर मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, गर्भ संगीत, ये सब कुछ हो जाता है। एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रेस फ्री एंड योर चाइल्ड बिकम्स काम एंड कूल, जो हम सबको एक बालक चाहिए। सो माता का खुद का स्ट्रेस फ्री रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये उसके अलग अलग रास्ते हैं। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन जस्ट कि ये सारी प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग अपने गर्भ संस्कार क्लास में भी करवाते हैं। सो इट्स अ ह्यूज कोर्स, बट वी जस्ट लिटरली बिहाइंड यू टू डू ऑल दिस थिंग्स, जिसके कारण आपके डेडिकेशन से आप ये फॉलो कर सकते हो।
तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ गर्भ संस्कार. समरी में मैं सिर्फ बता दूं तो जैसे अभी मैंने बताया कि भाई मैंडेटरी इट इज नीडेड, तो उसका जवाब है यस. व्हाट इज द मोस्ट नीडेड थिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर और द प्री प्लानिंग कपल्स? तो दैट इज योर डेडिकेशन. नंबर थर्ड, हु ऑल कैन हेल्प? तो ये बच्चा सिर्फ माता और पिता का नहीं है, ये पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे देश का बालक है. तो ये सब लोग उसको मदद कर सकते हैं. एंड रिजल्ट कैसा है? तो आप जैसा चाहो वैसा रिजल्ट आप पा सकते हो, एज यू विश, राइट? सो दिस वाज द बेस्ट थिंग वी कैन सर्व यू. Thank you so much, and especially all the team of Rotary Club. Vatsal bhai, I think I'm done from this side. Yeah. Thank you, Jolly Yeah. Ben. Isha Ben, please continue. Yeah. Thank you very much, Jolly Ben, and thank you very much, Dr. Abhay. That was really an enriching session. Now, if anyone has any questions, I'm sure that Dr. Abhay and Dr. Jolly will be pleased to answer them. I think those who have question can unmute themselves and ask one after the other. Thanks. Yeah. Thank you, PL Ben. Hey, hi. This is Sanket. I have a small doubt. कुछ लोग बोलते हैं कि गुड़ है जो वो गरम कहला जाता है, तो इस टाइम पे वो नहीं खाना चाहिए. सो क्या ऐसा होता है? अभय भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है. गुड़ ले सकते हैं. एक्चुअली जो गुंदर की राब लेते हैं ना, वो गर्म है, वो उनको 9 मंथ में लेना है. बाकी वो गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का पानी भी ले सकते हैं. जो भी स्वीट होता है वो हमेशा गुड़ में ठंडा ही होता है. लेकिन ये मान्यता है, फॉर एग्जांपल शुगर कैन जूस है, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि उसी में से गुड़ बनता है, सब लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत गर्म है. तो मुझे बताओ, शुगर कैन जूस मैक्सिमम हम समर में पीते हैं. वो ड्रिंक समर का ड्रिंक है. अगर वो गर्म होता तो फिर हम समर में क्यों पीते? तो ये मान्यता है. तो आप गुड़ भी ले सकते हो, गुड़ का पानी भी ले सकते हो. इट्स वेरी गुड फॉर द आयरन ऑल्सो. जब भी कोई भी आयरन होता है, किसी की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम होती है, तो ये हम गुड़ का पानी खास सजेस्ट करते हैं. और वो अगर कोई स्पेसिफिक है थ्रू आउट 9 मंथ, या तो फिर थोड़ा थोड़ा भी लाभ ले सकते हैं. एक अल्पा बहन ने क्वेश्चन अच्छा रखा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ फादर. क्योंकि आजकल हमारे पास जो कपल्स आते हैं वो सब भी बोलते हैं कि मैम मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, तो फिर बच्चे के पीछे मेरा नाम लगाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ तो मैं करती हूँ. तो व्हाट इज द रोल ऑफ द फादर, उसका एक बेसिक आंसर मैं आपको देती हूँ कि इफ यू आर इन अ प्री कंसेप्शन पीरियड, अभी आपको कंसीव नहीं हुआ है, तो फादर का तो 50% रोल है और 50% मदर का है, क्योंकि दोनों अपने बीच को देकर कंसीव करने वाले हैं. सो व्हाट आर द फॉलोइंग्स, वो दोनों को इक्वली सेम करना है, चाहे वो खान पान हो या फिर उसके रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हो या फिर उसके रिलेटेड कोई कार्य हो. वंस यू गेट कंसीव्ड, फिर मदर का रोल ज्यादा हो जाता है क्योंकि बेबी उसके टमी में है, राइट? हस्बैंड ने शायद ऑफिस में कुछ चिल्लाए या गुस्सा किया तो वो बेबी शायद नहीं सुन पाएगा, मगर मम्मी ने अपनी सास के साथ कुछ अनबन कर दी तो 24 घंटे बेबी आपके पास है, तो माता का रोल बढ़ जाता है. नो डाउट, दैट डज नॉट मीन कि फादर का रोल नहीं है. हम स्पेशली फादर्स रोल क्या है उसके भी एक सेशन लेते हैं कि भाई जैसे कि बेबी टॉकिंग है, उसको स्टोरी सुनाना, उसको मंत्र सिखाना, उसको अच्छी अच्छी से बातें बताना. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि माता को जो खाना पीना है हेल्दी, न्यूट्रिशियस और घर का,
उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट हस्बैंड का होना चाहिए, क्योंकि इफ माय हस्बैंड गोज टू यूएस पिज्जा एंड आई हैव टू ईट भाकरी शाक, तो वो एक दो बार तक ठीक है, फिर मेरे मन में क्या भाव आएंगे, इनको तो मजा आया, मुझे सब सेक्रीफाइस। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग है वो भी बेबी कैन फील। So husband support is equally important. And the third thing is after baby get delivered, equally फिर से role आ जाता है husband wife दोनों का as a parents. So father's role is always there, right? Okay. I think some questions are there in the chat box. इसमें आप बोलो वैसे ले सकते हैं. I think Dr. Archana Shah wants to ask something. Archana, Yeah, Archana Ben. Thank you, Dr. Joy and Dr. Abhay bhai. It was a very nice session on Garbh Sanskar. I'm basically a gynecologist, and I deal with pregnant patients and high-risk pregnant patients. So yes, अभी जो हमारा pregnancy का care है वो ज़्यादा holistic हो गया है. So we are trying to include a lot of other things also during pregnancy. So उसमें ये जो आपने activities बताई वो medically also we also suggest कि आप लोगों को कर, but positive thinking and positive attitude वो कोई भी बीमारी में help करता है. That is one thing. Second thing है, देखिए as doctors science believes कि आपने जो सोचा वो बच्चे में नहीं आने वाला है. Later on genes, upbringing, environment ये सब भी बहुत factors हैं जो करते हैं. आज कोई भी माँ ऐसा तो नहीं इच्छा करेगी ना कि मेरा बच्चा खराब आए. So the thoughts are going to be positive only, but still कई ऐसा होता है कि later on suppose genes होते हैं, environment उसका अच्छा नहीं है या upbringing अच्छा नहीं है, तो वो जो expectations, every mother has highest expectation from her child. So सबका यही इच्छा होगी कि मेरा बच्चा आज ये बने, तेंदुलकर बने, या मेरा बच्चा कोई बड़ा साइंटिस्ट बने कि डॉक्टर बने. No mother would think wrong about her child. So everyone can't have the desired child of their dream. That is what I want to. कई patients हमारे पास इतने सारे expectations लेके आते हैं. True. So उनको आप कैसे एकदम बराबर बताया. इसी यही था कि सब लोग सोचते तो है कि भाई ऐसा ऐसा बने, उसके लिए जो प्रोसेस करनी रहती है ना, तो उसमें भी जो रस रहता है, जो श्रद्धा तत्व और जो पॉजिटिव मोटिवेशन जो होना चाहिए. और कैसे होता है कि टीचर तो सभी स्टूडेंट को एक जैसा ही सिखाती है, लेकिन जो ग्रास्पिंग होता है वो हर एक का अलग अलग होता है. तो जो अच्छे से ग्रास्प करता है, श्रद्धा पूर्वक अगर ये करता है, जैसे कि कैसे होता है कि हम लोग ये भी कहते हैं कि मन की असर शरीर पर होती है, मन की असर शरीर पर होती है. और उससे जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी पीरियड्स में रहते हैं तो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं या आफ्टर डिलीवरी भी होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? हम बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है. अगर हार्मोन की असर शरीर पर होती है तो शरीर से किए जाने वाली क्रिया से हार्मोन पे भी असर पड़ेगी. और इसीलिए जो लोग भी ये जो पॉजिटिव थॉट्स उनको रहता है कि भाई हाँ हम लोग अच्छे रहे, लेकिन जिन्होंने जैसे डॉक्टर अर्चना ने कहा एटमॉस्फेयर ऐसा रहता नहीं है. क्या होता है कि एक वट वृक्ष के बीज में है ना, बहुत बड़ा वट वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन वो तब तक वट वृक्ष नहीं बन सकता जब तक कि उसको मिट्टी और माली ये दो चीज नहीं मिलती है. और जब मिल गई तभी उसी बीज में से 1000 बीज दूसरे होंगे और उससे लाखों वट वृक्ष होंगे. तो वो मिट्टी वो है एटमॉस्फेयर, और माली यानी ये गर्भ संस्कार. और जो डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर की टीम्स है, या जो भी लोग भी गर्भ संस्कार करते हैं, उन्होंने ये एटमॉस्फेयर करना चाहिए और उस तरह से प्रोसेस देना चाहिए जिससे कि उन्होंने जो सोचा है वो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सके. और डॉक्टर चंद बराबर बताया कि एटमॉस्फेयर बहुत महत्व होता है. इसलिए डॉक्टर जॉली बेन ने भी कहा कि हस्बैंड का काम यही होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखे. थैंक यू सो मच अभय भाई. इन्होंने जो बताया वो एकदम सही है, मगर पहले तो मैं डॉक्टर अर्चना से एक
स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपने इतना सब कुछ अच्छी तरह से सुना और एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका बताया, क्योंकि आज पूरी सोसाइटी यानी कोई भी फैकल्टी के डॉक्टर्स हो उससे ही एक अवेयरनेस और प्रॉपर वेलबीइंग आने वाला है। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। मगर एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हमको मदर्स कॉल करते हैं कि मैम मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करती हूँ जो आपने बताया, मगर पता नहीं फिर भी नेगेटिव हो जाती हूँ। तो उसके कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ कि जैसे कि हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो कितने छोटे छोटे बच्चे भी टेररिस्ट के जैसे होते हैं। 10 साल का बच्चा भी हाथ में गन लेकर आता है, हमने देखा है, न्यूज में देखा है, चैनल्स पर देखा है। तो क्या उसकी मदर को कभी ऐसा होगा कि मेरा बालक एक टेररिस्ट बने जन्म के साथ ही? नहीं ना, क्योंकि उसको पता है कि उसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। फिर भी उसके आसपास का जो वातावरण है जिसमें उसने सामने वाले को गिराना, शत्रु को मारना या किसी का बुरा करना, यही सुना है, समझा है और देखा है, तो हम जो इंद्रियों से प्राप्त करते हैं तो वो अनवांटेड होते हुए भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर आ जाते हैं और उसके कारण वो बालक तक पहुंचता है। तो बालक को हम अच्छा बनाना चाहते हैं मगर फिर भी कुछ चीजें उसमें ऐसी आ जाती है जो वातावरण से शायद उसको प्राप्त हुई है। और किसी ने आगे ये भी लिखा है क्वेश्चन में कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो भी बालक कैरी करता है, राइट? मगर यही चीज तो हमको चेंज करनी है। बालक जब गर्भावस्था में होता है तो वो एक पिंड के समान होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि एक दही है और एक दूध है, तो दही बनता किसमें से है? तो आप बताओगे दूध, क्योंकि दूध के अंदर 2 चम्मच जामुन डाल देते हैं और उसको 5 घंटे रख देंगे तो वो दही बन जाएगा। बट बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो दूध के गुण है वो दही के नहीं है। हमें एसिडिटी होती है तो हम सिर्फ दूध ले सकते हैं, और डायरिया हुआ है तो हम सिर्फ दही ले सकते हैं। दोनों को साथ में कभी प्रयोग नहीं करेंगे। दही बना है दूध में से, फिर भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वो 2 चम्मच जो डाला उससे चेंज हो गई। तो ये जो 2 चम्मच है वही संस्कार है। जो गर्भ है वो अपने जो कर्म को लेके आया है उसमें आप संस्कार रूपी जो 2 चम्मच, गुड एटीट्यूड, गुड थॉट प्रोसेस, गुड वेलबीइंग, अच्छा खाना पीना, ये डाल रहे हो तो बेबी विल गेट अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसकी जो नेगेटिविटीज है या उसके जो नेगेटिव कर्मस है वो शायद एलिमिनेट ना हो मगर इट गोज इन द हाइबरनेशन। वो तब चाहते हैं, वो जब तक उसको ऐसी परिस्थिति सामने नहीं आएगी वो खड़े नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने ट्राई किया गर्भ संस्कार का बताने का, एंड इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट एज वी सेड। तो एवरीथिंग आई कैन नॉट कन्वे राइट नाउ, बट आई होप कि थोड़ा आपके दिमाग में थोड़ा आया होगा। मैं नाम भूल गई, किसने क्वेश्चन किया था? देयर इज गीतिका सलूजा। हाँ, तो आई थिंक आई होप कि ये जो रूपल मैंने आपने बताया था कर्म का वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। Yes, I understood your point. ओके, थैंक यू। और कोई बाकी रहा क्या? या गीतिका? हाँ जी, हेलो डॉक्टर जॉली। हेलो। जो मैं समझती हूँ आप उसको गर्भ संस्कार को या पॉजिटिविटी को या अट्रैक्टिंग दी साइंस ऑफ अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थॉट्स, व्हाट आई बिलीव इज कि चाहे बच्चा आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, या इवन इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल चाइल्ड, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट द मदर, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑल द मदर, it's not only about the mother, it's about the entire environment, entire ecosystem। आपके घर में कैसा माहौल है, आपकी सोसाइटी में कैसा माहौल है, आपकी कम्युनिटी में क्या माहौल है, एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें जब आप कंसीव किया है तो खाली माँ एक जरिया है उसका,
वेरी फ्रैंकली। फादर की खाली ये नहीं है रोल कि भी वो माँ खाली हैप्पी रखे। इट्स अबाउट द क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट इन द एंटायर, ईच एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. But what I simultaneously want people to understand is accept the child, the way the child is born. That's most important. Yes. Yes. What I have learned from my son who's now 22 years old, and I know the kind of मैंने जो 9 महीने में उसके साथ जो वक्त spend किया था as a mother, what I should be doing with my child when I was pregnant with him. But afterwards I realized कि it's not only about the 9 months, it's about the entire life, the kind of things it's done in the life, and then accepting the child when the child is in stress, in trouble, in anxiety, in making mistakes. That also plays a very important role, and taking it forward as मेरा बच्चा है, गलती हो गई तो चल जाएगा, कोई problem नहीं है, let's go ahead. You know, so वो सब चीजें भी साथ में, it's not only about 9 months. So I don't think that you can create a dream baby by being with the baby for 9 months. Just it's not an umbilical, ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होता है umbilical cord का connection टूट गया. That connection has to be there, not only with the mother but everyone around, and everyone has to accept the child the way the child is. Right. I fully agree with you, गीतिका मैम. और इसीलिए हमने 3 फेज बताए थे गर्भ संस्कार के. Before you conceive, during pregnancy, and after you get the child. बच्चा एक बार सोच लिया और क्या आया पता नहीं है, फिर उसको थोड़े छोड़ देना है. मगर आपने जो संस्कार 9 महीने दिए हैं, यदि उसके कुछ भी उसको इम्प्लीमेंट उसके शरीर में, उसके मन में जो आया है, वो तो आपको एक्सेप्ट होने ही वाला है. मगर जो चीज आपने सोचा नहीं और वो है, तो मैं आपके पॉइंट समझ गई कि जो जैसा है उसका एक्सेप्टेंस लेवल ऐसा आना चाहिए. तो आई वुड ऑलवेज टेल ऑल द मदर्स इन थ्रू आउट द 9 months. एक सेकेंड लाली जी, मैंने एज एन एजुकेटर भी ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो. अरे ऑल किड्स आर नॉट गोइंग टू बी इंटेलिजेंट, ऑल किड्स आर नॉट गोइंग टू बी सचिन तेंदुलकर. एक्सेप्ट इट, सी व्हाट इज गुड इन द चाइल्ड, एंड देन उसने 9 months में सचिन तेंदुलकर सोचा, मतलब सचिन तेंदुलकर नहीं पैदा होने वाला, हो सकता है वो राहुल द्रविड़ पैदा हुआ हो, या हो सकता है वो कोई और पैदा होगा. Yes. But so we need to understand, I can't dream, I can't have a designer baby. But I need to understand my baby's design. That's more important than having a designer baby. Yes, मैं वही चीज बताती हूँ कि आपको एक अपने हिसाब से क्वालिटीज डिसाइड करनी है. There can be the 3 type of qualities: physical qualities, mental qualities, emotional qualities. तो जब भी कोई व्यक्ति हमको पूछता है कि मैम आपने बताया कि हमको बेबी कैसा चाहिए, तो आई ऑलवेज से दैट मिनिमम 10 अरे मैक्सिमम 10 क्वालिटीज आप लिखो. डॉक्टर जॉली हियर आई विल, सॉरी डॉक्टर जॉली हियर आई विल डिफर. क्या बेबी को पूछा उससे कैसा बनना है? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि जब तक बेबी गर्भ में है तो 9 months में पेरेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें बेबी ऐसा चाहिए. मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, देखो, the baby comes to the parent with a thought. नहीं, I know. बेबी पेरेंट्स को चूज करता है कि ये पेरेंट के पास मुझे जाना है. बालक कहाँ से आया? ये जो आपने उत्तम आत्मा का आह्वान किया और उससे बालक आया, तो हमने आत्मा भी पेरेंट को चूज करती है. वही मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब जो जैनिज्म का मैं समझती हूँ उसमें वेरी क्लियर लिया कि आत्मा भी आपके पास आने का चॉइस करती है. इट कम्स बाय चॉइस. मैं वही बोल रही हूँ कि आत्मा ने आपको चूज किया, आपने उस आत्मा का आह्वान किया, उसको इनवाइट किया विद अ ग्रेट प्लेजर कि भाई एक्सेप्टेंस के साथ उसको इनवाइट किया है. तो आपको पता है कि ये जो चीज है वो मुझे अपने बालक में चाहिए. मगर हम लोग गर्भ संस्कार में एक चीज सबको बताते हैं जो आपने सबसे पहले बताया, एक्सेप्टेंस. मैं आपको सिंपली एक चीज बता देती हूँ एक्सेप्टेंस के लिए कि हमारा एक लेबर का सेशन रहता है. फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से टू देम कि आप मन में ये भाव रखो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसा मुझे होना है, या ऐसी मुझे लाइफस्टाइल क्रिएट करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा खान पान. मगर सपोज इफ यू आर इन अ गायनेक रूम या ओटी में हो और आपके डॉक्टर यदि आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई यू शुड गो फॉर अ सी सेक्शन, तो दैट मोमेंट यू शुड ऑलवेज थिंक कि यस, मेरे और मेरे बालक के लिए जो सबसे बेस्ट है उसका मुझे मतलब कि आकार्य है वो मुझे. तो यस, आपको सिर्फ यस आई एम रेडी
यही चीज सीखनी है फ्रॉम द टाइम ऑफ द लेबर। तो फिर बालक ने आपको सोचा, आपने सोचा कि मेरा बालक स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए सपोज, और आपका बालक तो भी क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा है, तो व्हाट वी सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे क्रिएटिव चाहिए या स्पोर्ट्स चाहिए, इसके अलावा आप ये सोचो अबाउट द क्वालिटी कि वो कंसंट्रेशन उसका अच्छा होना चाहिए। वो डॉक्टर इंजीनियर या आर्टिस्ट नहीं, उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, ये क्वालिटी मुझे चाहिए। फिर वो अपनी इस क्वालिटी को कहीं भी इम्प्लाई कर सकता है। जैसे कि मुझे हम्बल बालक चाहिए, तो वो हम्बलनेस उसकी बहुत सारे फील्ड में उसको काम में आएगी, राइट? तो यू पिक दोज क्वालिटीज दैट इज बेनिफिशियल टू द बेबी, सो दैट वी गाइड कि भाई ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जो मदर्स एक्सपेक्ट करती है हमसे, हमको ऐसा बालक चाहिए, ऐसा बालक चाहिए। वी डोंट सजेस्ट कि आप क्रिएटिव स्पोर्ट्समैन ऐसा बालक मांगो। We always insist the quality that benefits the life or the skill of the baby, जो उसको कोई भी फील्ड में काम आएगी, ऐसे, right? Okay. I would like to add something. Sorry, Geetika ji. I would differ ke Atma cannot choose the womb. It's all decided by the universal force. And जिसके साथ आपके कर्म के बंधन है, उधर आप जाएंगे. आत्मा, only the divine Atma can select the womb. बट अपने जैनिज्म में वत्सल, अगर if you study जैनिज्म जो मैंने पाठशाला में पढ़ा था, उसमें कहा था ये, मतलब उसमें बात भी है कि ऑफ कोर्स डिवाइन आत्मा है, जो भी है आत्मा एक पेरेंट्स को भी चूज, एंड यू हैव बीन ब्लेस्ड टू, क्योंकि आत्मा ने आपके थ्रू आने को चॉइस टू बी योर पेरेंट्स। आज महावीर की बात करते हैं, तो महावीर, दैट्स व्हाई द पेरेंट्स आर टोल्ड टू बी ब्लेस्ड दैट महावीर थॉट ऑफ कमिंग फ्रॉम देयर this thing. So I think each and every soul is divine. I believe in that. Yeah, and so that is what Jainism also talks about. Each and every soul is divine, and they have their liberty. Because us as parents, we are blessed that they chose us to come to us. Right. And that's how we can respect our kids and love our kids, thinking that yes, we are blessed parents that they chose to be our kids. Now, ऐसे जैनिज्म में ऐसे है कि हर आत्मा शुद्ध होता है, वो हर आत्मा परमात्मा ही होता है। कर्म बंधन के कारण वो इस संसार में भटकता है। हाँ, माता पिता चूज करना एक ऋणानुबंध से होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अंतराय कर्म की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। जब जैनिज्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जम्बू स्वामी का जब चरित्र आता है तब यही होता है। उनके माता पिता ने जब आराधना की तब जाके जम्बू स्वामी पधारे थे। वो एक स्टोरी है उसके अंदर, अगर आप पढ़ोगे तो आप उसमें ध्यान में आएगा। तो वो पूर्व से ऋणानुबंध होता है, लेकिन कभी कुछ अंतराय की वजह से वो आ नहीं पाते। लेकिन वो एकांत में नहीं है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें वो पता नहीं है कि नहीं है, इसलिए हमें प्रयत्न ये करना रहता है। जैसे कि एक लक्ष्य होता है कि भाई मुझे एग्जाम में 90+ ये मेरा लक्ष्य है, तो मेहनत भी मैं इतनी ही करूंगा। लेकिन अभी 70 आया तो ठीक है, नसीब में। तो क्या होता है, सब कर्म पे वो छोड़ना रहता है। जो पुरुषार्थ होता है, और जो पुरुषार्थ है ना, वो गुणात्मक ये होता है। इसलिए हम लोग जो प्रेयर में ये जो प्रोफेशन जो है ना, वो नहीं कहते, वो कहते हैं प्रभु वीर जैसी क्षमा होनी चाहिए, कलिका श्रवण भगवान जैसे गुरु होने चाहिए, फिर जम्बू स्वामी जैसा त्याग होना चाहिए। तो ये फिर कोई भी फील्ड में हो, और हम तो कहते हैं कि कोई भी फील्ड में जाए उसके पहले वो मनुष्य बने, एक महामानव बने, और एक महामानव फिर कहीं पे भी जाए वो अच्छी फील्ड, जो भी फील्ड में जाएगा वो अच्छा ही होगा। तो ये एक उसकी समरी है कि ये गर्भ संस्कार। तो ये डिजायर रखनी चाहिए, अपेक्षा मेरा बालक गुणवान बने। इसलिए हम एक ही स्टेटमेंट में कहते हैं, मुझे कैसा बालक चाहिए, मुझे मनोहर रूप गुणवान संतान प्राप्त हो। बस इसमें सब आ गया। यस वत्सल भाई। Yeah, I think one last question now because we'll need to end the session soon. Shabnam ji का एक question था। Shabnam ji, would you ask or should I say it? उन्होंने मुझे WhatsApp में भेजा है। You go ahead, Vatsal. Yeah, उन्होंने WhatsApp में भेजा है, how to cope up with stress in working pregnant woman. Like जो working करती है उनको जो stress होता है, तो how will that affect the child, or how do you cope up so it doesn't affect the child? Right, Shabnam ji? Yes, Vatsal. Thanks. Thank you. Yes, this is a right now जो ये सिनेरिया है,
कि ये जो कंडीशन है वो आजकल 100 में से 90 लड़कियों की है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग, एंड जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रेस को मैनेज करना। इनफैक्ट प्री कंसेप्शन से ही ये तकलीफें शुरू हो जाती है। तो जब भी हमारे पास कोई भी आता है तो आई ऑलवेज सजेस्ट 2 थिंग्स। नंबर 1 कि देखो, लाइफ में प्रायोरिटी देना आपके हाथ में है। आप सब कुछ तो ये 10 उंगलियों से नहीं पकड़ पाओगे। सो आपको एक प्रायोरिटी देना सीखना है कि मुझे अपने इस 9 महीने को प्रायोरिटी देनी है या अपने प्रमोशन को। प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट या प्रमोशन इंपॉर्टेंट, राइट? कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जहां पर हो, कई बार लड़कियां अपने बॉस या फिर जो बोलते हैं कि स्टाफ से बात ही नहीं करती कि भाई आई एम प्रेग्नेंट एंड मैं सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट स्ट्रेस। मैं सिंपली बैक ऑफिस जॉब या वर्किंग जो है वो कर लूंगी, भले ही मुझे प्रमोशन न मिले। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 4-5 लड़कियों, उसमें से 2-3 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब कर रही थी कहीं पे, और एक लड़की लॉयर थी। तो उनमें मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि व्हेन दे प्रेजेंट हर सेल्फ कि भाई मेरी लाइफ में अभी 9 मंथ्स ये बालक इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, तो ऑल पीपल हेल्प हर लॉट। तो आपको कभी कभार प्रायोरिटीज को समझना है और आपकी इच्छा के अनुसार वातावरण को मांगने का प्रयत्न करना है। मुझे नहीं पता 100% उसको रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, मगर ट्राई तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर स्ट्रेस ऑफ द ऑफिस और वर्किंग, तो स्ट्रेस तो सच बताऊं मैं, हाउसवाइफ्स को भी रहता है और जॉब वर्किंग में भी रहता है, राइट? पर्सन अलग अलग रहता है, मगर स्ट्रेस फैक्टर इज वेरी कॉमन नाउअडेज। तो उसको हैंडल कैसे करना है ये हमको सीखना है। स्ट्रेस तो पूरी लाइफ है, मगर उसको हैंडल कैसे करना है। जैसे कि आप कोई भी चीज को इग्नोर कर दो, वहां से यू जस्ट लीव। तीसरे नंबर पर आप मन में वही चीज को निकालने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करो, या तो नंबर 4 मेडिटेशन रेगुलर करो। तो ये जो छोटे छोटे जो हेल्पफुल कंटेंट्स है वो उनको हम सिखाते हैं, और जिसको जो ज्यादा बेस्ट होता है वो उसकी फिर 9 महीने प्रैक्टिस करता है। बट यस, स्ट्रेस इज राइट नाउअडेज इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस ना हो ऐसी कोई लड़की नहीं होती है। मगर मैंने आज वो बीके शिवानी का आज का जो एवरीडे उनका एक कोट आता है, उसमें बहुत अच्छा आज के ही कोट था। मैंने पढ़ा था कि स्ट्रेस शुड नॉट बी नॉर्मल फॉर यू। किसी और के लिए ये नॉर्मल है, मगर हमको उसको नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं करना है। पीस हमको नॉर्मल एक्सेप्ट करनी है। यदि आपने भी स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लिया है तो स्ट्रेस आपको नहीं छोड़ेगा। आप पीस को एक्सेप्ट करो तो पीस आपको नहीं छोड़ेगी। ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मगर जस्ट मैंने जो आज ही सुबह पढ़ा था तो जस्ट आई कन्वे। बट ये 2-4 चीजें हम लोग हेल्प करते हैं उनको मदद के लिए। ठीक है, थैंक यू। Yeah, Isha ji, please continue. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh ji. Now that considering the time constraint, I would request Rotarian Vatsal Shah to say a few words about today's session, please. Yeah, we'll take all the precedents one after the other. Yes, yes. Let's start with you, please. Abhay bhai and Jolly Ben, excellent session. Really enjoyed it. Set me thinking क्योंकि ये मेरे लिए भी first time था. I listened to this topic and definitely we try to keep the mother happy always during pregnancy. पर ये सारे factors पहली बार सुने. So definitely we'll spread the word. Thank you. I would now request Rotarian Shabnam ji from RCA West to say a few words, please. Shabnam ji, you are not audible.
Vatsal bhai, is she audible? I think नहीं, शबनम जी, her mic is in mute. हो? I think you can take Gitika ji's. Okay. Yeah, Vatsal. Okay, हाँ. जी. Yeah, got it. Actually, my audio has gone from my laptop. Actually, that is. It was really an interesting session and came to know many things about this Garb Sanskar. And even I had also experienced, because I used to, when I had conceived, I used to, sing all the rhymes and everything, all stories and everything to my child. And then when he was born, really, Gitika, when he was born, I mean, during the 8 months, when he was 8 months old, he was the one, he was started singing rhymes, and I was really surprised. So this is what I have experienced through Garb Sanskar. So thanks a lot, Vatsal. 8 महीने का गा रहा था आपका बच्चा? अरे हाँ, आपका बच्चा 8 महीने में गा रहा था? गा रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए. Seriously, and then उसको सेंटेंस सिखाया था कि कोई मेहमान आता तो उसको ये सिखाया गया फिर कि आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई. So he used to say that. I have written it as a baby book also. So this is really a surprise कि गर्भ संस्कार बहुत काम का है, and मतलब important है and काम करता भी है if you follow that. है ना? Thanks a lot to Dr. Dolly and Dr. Jay. बहुत अच्छा, Dr. Abhay, बहुत अच्छा लगा. And Vatsal, looking many more of such sessions ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Gitika ji, would request you to say a few words. Yeah, thank you so much. Actually, मेरा बेटा 22 साल का है, and I know 9 months what I had spent time with him, and that is what I just told when I was discussing कि yes, what my mother does during that 9 months is important. उसके beyond है ना, what the community, the way the community interacts with each and every human being around, the family, the mother. आज जैसे एक जन ने कहा कि भी आप स्ट्रेस्ड हो तो जॉब छोड़ दो. आप 9 महीने जॉब छोड़ोगे, आप 90 साल नहीं बैठोगे पीछे घर पे. It's not about just leaving the job for 9 months just because you're stressed. 9 months is one of the phase of the child's life. It's not the only phase, very frankly. With my 23-year child, I know how things have worked. First and foremost, most important is don't try to design the baby. Because 9 महीना माँ डिजाइन करने में बच्चे को लगती है, उसके बाद बाकी के 9 साल भी उसको डिजाइन करने में ही लगती है. मुझे मेरा बेटा ऐसा चाहिए, मुझे मेरा बेटा वैसा चाहिए. Give the freedom to the child to explore and understand its own design. We each and every one of us as parents have our own characteristics, our own personality, and ensure that the child will come well, because you need to trust your own self, your own thought process, your own environment, the way you are living your life. It's more about demonstration rather than instructions to the child, giving the child. That's what I say. I can always say. And that is either you call it as Garb Sanskar or you call it as the way of living the life. It can be whatever you coin it as. But what's important is just live the life, enjoy the life. What is stress? आपके घर में लोग, अगर आपके घर में जैसे काफी लेडीज को स्ट्रेस क्या होता है, आज बाइक मतलब घर साफ नहीं है मेरा, is stressed. I tell people come to meet me, not my house. So if they're coming to meet me and they're happy looking at me, it doesn't matter if my house is neat or not. So I will not get stressed just because my 2 things are not cooked or my house is not neat, because someone is coming to my house. I'm more happy because someone is coming to meet me. So that's the way you look at the life. That's more important to develop in your personality rather than just focusing on those 9 months or few years after that. It's a lifelong process. We are kids of someone, and similarly we have kids also. It's an entire cycle. Thank you so much for this. At least I started thinking again on all those time which I've spent right from day of conceiving my child till today. Yeah, thank you so much. Now I would request Rakhi Khandelwal from RC Asmita to say a few words, please. Hello, everyone. I would like to thank Dr. Abhay and Dr. Jolly and Vatsal Bhai and Team Metro. I'll not be able to speak much as I'm not well, but it was a marvelous session and full of learning. And Vatsal Bhai, thank you to you and Team Metro for organizing such nice, inviting such nice speakers again and again, time and again, and looking forward for many more. Thank you.
Thank you, Thank Rakhi you. ji. Thank you. Now there are few secretarial announcements by Rotarian Deepen Bhai Chakkar. Deepen Bhai, over to you. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Abhay Bhai and Jolly Ben. Amazing session. Me and Pooja attended the Garb Sanskar seminar first time, say 7-8 years back. And our kid has been planned accordingly. And she is a young age Rotarian. That's what people call it in our Metro family. But yes, it helps a lot and it is really an impactful one. And we wish गर्भ संस्कार का जितना हो सके उतना ज्यादा लोग सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके लिए जो भी करना हो, Rotary is committed. In fact, we focus on women and child empowerment. So basically, this is one of them because जो gross चीजें जो दिखती है, but subtle चीजें जो होती है, जो शायद अभी नहीं दिखती, लेकिन आने वाले 50 साल, शायद 500 साल, थोड़ी लंबी but impactful चीजें रहती है. So the गर्भ संस्कार is one of them. So appreciable thing that you accepted the invitation. It was really wonderful session. Yes, as said by Vatsal, our governor's official visit has been postponed so as of now, and looking at the current situation, we are not planning any physical meetings, but yes, definitely over Zoom we will keep calling such wonderful speakers and we'll keep doing the meetings over Zoom, and we'll keep you updated through WhatsApp group. Thank you. Thank you so much, Deepen Bhai. Now I would request N. Riddhish Shukla ji to give vote of thanks, please. Good evening, everybody. All the Rotary members from the different clubs. We hope that you have enjoyed this interactive session because there was so much of interaction going on, which is really a good thing that people are listening what speakers are talking about and then giving their inputs. That's a very important thing. On behalf of Rotary Club Ahmedabad Metro, I would like to thank Dr. Abhay Shah and Dr. Jolly Parikh for sparing their valuable time and sharing wonderful insight and experience with us today. I'm gynecologist by profession, and what I would like to say few things because there has been a long discussion. What Dr. Abhay Shah has quoted with the example about Sonu Nigam ji and Shivaji Maharaj and Narendra Modi ji. And so I do agree at certain extent that it is about the way of thinking about the parents, and it is a responsibility of not just the mother, father, but whole family. बच्चा आता है तो वो पूरे family में आता है, खाली mother को या father को या parents को नहीं आता है. So गर्भ संस्कार is more about living what you are thinking. कि मुझे बच्चे में कंसंट्रेशन चाहिए, ये चाहिए, वो खाली बोलने से नहीं आता है. बच्चा वो ही चीज करता है जो वो किसी से देखता है. तो सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होती है, और हर फैमिली में 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं. हम देखेंगे कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है. सो जो क्वालिटीज हमको अपने बच्चे में चाहिए, that you actually have to leave. It has to be lived by mother, father and the family. जो बच्चा देखेगा वही वो सीखेगा. तो जो क्वालिटीज हमको चाहिए वो हमको एज एन एग्जाम्पल सेट करनी है. दैट इज वन थिंग. जैसे डॉक्टर जॉली परिक ने कहा कि yes, there are 3 stages: एंटीनेटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल. हम प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड वगैरह दवाई देते हैं कि जिसके कारण बच्चे को कोई माल डेवलपमेंट नहीं हो, कोई डिफेक्ट नहीं हो. सो उसका ही रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि प्री कंसेप्शन आप क्या सोचते हो, प्रेगनेंसी के लिए आप मेंटली फिजिकली अपने बॉडी को कैसे तैयार करते हो, फिर 9 महीने का जो ब्यूटीफुल जर्नी है उसमें आपको क्या खाना चाहिए. हम अगर देखेंगे तो पुराने जमाने में जब हमारे पेरेंट्स थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो प्रेग्नेंट वुमेन की एक्स्ट्रा केयर ली जाती थी. उनके लिए स्पेशल खाना बनता था. 6 मंथ में, 7 मंथ में वो कुछ डिफरेंट खाना खाती थी, जिसके चलते उसका फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा रहता था और उसी तरह बच्चा भी अच्छा आता था और बच्चे का फिजिकल हेल्थ अच्छा था. Nowadays, because things have changed, nuclear families है, mothers are working, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है. तो मे बी हाउस होल्ड काम नहीं करते, बट वो कुछ सेशन के लिए जाते हैं, प्रेगनेंसी क्लास लेते हैं, ये सब
Yeah, it seems our connection is lost. Sorry, it got disconnected. Yeah. So very important thing is कि प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, ये तीनों फेज बहुत जरूरी है. ये तीनों फेज में थिंकिंग, फिजिकल केयर, मेंटल केयर, इमोशनल केयर इतनी ही जरूरी है. जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई, तो हाँ, ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है. लाइक फ्रॉम डे वन ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रेग्नेंट वुमेन आती है उनके लिए मैंने एक लाइब्रेरी रखा हुआ है कि वो लोग बुक्स एक्सचेंज करके जाते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं. पहले के जमाने में कहा जाता था जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको पढ़ने के लिए बुक्स दिए जाते थे, महाभारत है, रामायण है, कि उससे वो सीखेगी कि क्या क्या क्वालिटीज बच्चे में डेवलप होने चाहिए. अभी अगर पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट आई डू टेल माई all the pregnant women that you read books whatever you like. So I have a library, then I do arrange yoga session for them. और मैं उनको बोलती हूँ कि जब आप काम पे जा रहे हो, ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, तो you listen to something which gives you a peace, which gives you a calmness of mind, जो आपका स्ट्रेस दूर करे. जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही चीज करे, पर जिससे उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग बना रहे ड्यूरिंग 9 मंथ, वो सब एक्टिविटीज करनी चाहिए, ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए. I would also, that is all about today's session. I would also like to thank Rotarian Isha Brugesh Vyas for being an effective master of ceremony for today's meeting and doing such a fantastic job. Thank you, Dr. Pooja Shah, for a prayer. Rotarian Rutvi Shah for reading the 4-way test. I would like to express my gratitude to N. Pooja Thakkar for introducing today's speaker in a very precise and eloquent manner. I would also like to thank presidents of various clubs, Shabnam ji from West, Dr. Geetika Saluja from Sarvam, Rakhi Kandelwar from Asmita for joining in this speaker meeting and member of all these clubs. And last but not least, the very interactive audience which has made this session a really interesting one. So thank you all. Good night. Have a safe time and have a wonderful time ahead in this difficult COVID era. Thank you. Enjoy the rest of the evening. Thank you so much. Thank you so